ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਅਠ ਸਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਆ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਆ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੋ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਘ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਆਪ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭੈ ਭਾਵਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ और उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਚਿਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਹਾੜ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਵੱਲ। ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਮਾਘ ਦਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੱਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੱਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚੀਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੱਜਨ ਕਰਨੀ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਤਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਦੀ ਜਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤਰਬੈਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਬੈਣੀ ਭੈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤੈ। ਤਰਬੈਣੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਬੈਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
उस प्रयागराज विच इशनान करना सब तो उत्तम पुण्य का कर्म समझिया जाता है। ते अपनी पेट उधर पूर्ति दी लई उत्थे बैठे पुजारी, उत्थे बैठे पंडित कभी जान का मौका मिलिया तो तकियो वेखण लई केवल कि आप मील अजे दूर होवोगे ते पहली दौड़ के वो तुहानू अपने वल खिंचण का यतन करनगे कि तुहाडे पाप दग्ध हो जाणगे जे साडी जुगती अनुसार तुसीं इशनान करोगे। मेरे सतगुरु ने सिख दा हर जीवन दे जीण दा ढंग चेंज कर दिता। कहन लगे सिखा माघ वाले दिन लोग तीर्थ इशनान वाल दौड़े जाते नहीं, चेते रखियो सारी जिंदगी तीर्थ नहाउंदे रहन उन्हां दी अंदर पवित्रता नहीं आउणी। आ मैं तेनू दसां जे माघ दे महीने विच गुरमत अनुसार इशनान कर लें ते करोड़ां जन्मां दी मैल तेरी तुप जाएगी। सतगुरु दा पंथ बड़ा निर्मल ते न्यारा है। तां ही भाई गुरदास ने यह बचन बाणी विच कहा सी, कहन लगे शब्द जिती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला। उन्हें विच मिलगोगा उन्हें दिता साहब ने। उथे तां भाई साहब इत्थों तक शब्द वरते ने कि गुरु नानक साहब दे पिछे चलन वाले इन्ने को पवित्र जीवन वाले सन। उन्हां दे जीवन नूं तक के बाबे दी संगत नूं लोग निर्मल पंथी कह लग पए सन कि इन्हां अंदर कोई मैल नहीं, इन्हां अंदर कोई द्वेष नहीं। ते भाई साहब कहंदे ने पता क्यों निर्मल हो गए? मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। नाम दा सिक्का, नाम दी रहमत जिन्हें अंदरों पवित्र कीता। थोड़ा जिहा जिस विषय ते मैं रुकना चाहना गुरु कृपा नाल कि की तीर्थ नूं गुरु साहब ने स्वीकार कीता, कि तीर्थ इशनान का महात्म गुरमत विच कुछ है ते जे सच्चा तीर्थ है ते गुरबाणी ने उस तीर्थ का किवें जिक्र कीता। सब तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जदों आपां आरंभ करनी, पहला यह अर्ज करनी तीर्थ की महानता की है। गुरु ग्रंथ साहिब विच हजूर का जो पहला शब्द असी बाणी आरंभ करने हैं ते पहला बचन ही आउंदा है सोचै सोच ना होवे। भावें कई सज्जन दा अर्थ सोचण नाल करदे। एक हिंदी का शब्द है सोच। आम तौर पर जिथे लोग इशनान करते हैं बड़े शब्द नेड़े नेड़े ने। देव आलय असल विच अखर है देव, आलिया का अर्थ हुंदा घर। एक शब्द हुंदा विद्यालय, आलिया दर ते घर, विद्यालय दर ते जिथे बच्चे नूं जां मनुख नूं विद्या दित्ती जाए, विद्या दा घर। देव आलिया दर ते जिथे देवतियां दा घर। एक शब्द असीं पढ़ने सोच आलिया। सोच आलिया दा अर्थ है जिथे मनुख अपने शरीर नूं सोच इशनान करा सके। हजूर ने उत्ते शब्द वरते कह लगे सोचै इशनान करन दे नाल सोच ना होवे। ते जे आपां कहिए भी ते सोचन सोच दर ते सोचना ते गुरु ग्रंथ साहिब विच सुखमनी साहिब विच एक बचन हुंदा सोच करे दिन हर रात मन की मैल ना तन ते जा। साहब कहन लगे सोचै सोच ना होवे। जे सोची लख वार जे लखां वारी इशनान कर लें ये अंदर ने पवित्र नहीं होना। अगे चलो कि तीर्थ नूं प्रवान कीता गया। असीं जदों पाठ करने साहब कहंदे मालक मैं हर वो काम करना जिहड़ा तेरी खुशी लैण वाला होवे। कदी पढ़ियो उस गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा है कि जालों ऐसी रीत कहंदे ने वो मर्यादा उस कर्म नूं मैं फूक दियां अग ला के जित मैं प्यारा विसरै। जिस कर्म नाल साइयां तेरी याद हिरदे विचों विसरदी है मैं वो काम करके लेना की है। नानक साई भली प्रीत जित साहिब सेती पत रहे मैं वो कर्म करांगा जिदे नाल तेरे चरनां नाल मेरी साझ बन जाए। हुण तको साहब ने अमृत बचन के असीं रोज पढ़ने। मैं अजे सिर्फ अर्ज करनी तीरथ बारे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की। जे अपने कोलों शब्द लाइए आपां देनदार हाँ, पर गुरु की मत नूं लुकाउणा भी जिहड़ी बेइंसाफी है। साहब ने अमृत बचन के कहन लगे तीर्थ नावा रोज पढ़ने। कहंदे मैं तीर्थ ते इशनान करा पर मैं करना तां जे तेनू चंगा लगदा है। जे तिस भावां जे तेनू नहीं चंगा लगदा मेरे साईं बिन भाणा के ना करी। तेनू
जे भाए ना ते मेरे इशनान करन दा लाभ की। तीसरा प्रमाण जपजी साहिब विचों पढ़े। अर्ज करनी फिर अगे नाम किवें तीरथ। हजूर दा अमृत बचन हुंदा तीरथ तप दया दत दान। इको पंक्ति विच सारियां दा जिक्र कर दिता है। निर्मल पंथ है। कहन लगे तीर्थां ते कीते कोई तप ते दिते कोई दान। कहंदे ने पहली गल तां प्यारिया इहदा कुछ मिलना नहीं ते जे तू कई साल ला के कमाई करेगा मिल जाएगा ते वध तो वध तिल जिन्ना मान मिलेगा। हुण तकियो सिमरन कोई करे ते तिल जिन्ना भी रब ओदी कमाई नूं अजाई नहीं जान दिंदा ते कर्म कांड करे गुरु जी कहंदे ने करोड़ां साल करदा रहे तिल जिन्नी इज्जत मिलेगी। कभी देखो का साहब दे बचन एक पासे कहंदे ने प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाए। सिमरन कर तिल जितना समा तेरा व्यर्थ नहीं जान देगा ते जे तू कर्म कांडा विच पै गया फिर तीर्थ तप दया दत दान जे को पावे तिल का मान। साहब जी फिर अंदर किवें पवित्र होवेगा। कहन लगे तू एक काम करया कर सुनिया मनिया मन कीता भाओ नाम नूं सुनी परत के मनी ते मनन तो बाद गुरमुखा जदों तेरे अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा तू तां खुद ही तीर्थ बन जाना है। तेरे कोल बैठियां दे अंदर दी मैल खत्म हो जाएगी। सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मन लाओ। ये साहब दी बाणी विचों कबीर साहब खास करके बनारस रहे ते आप सब नूं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब च कबीर साहब दे जिहड़े शब्द ने उन्हां नूं आपां जदों पढ़दे आ ते एक एक शब्द दे विचों सच जिहड़ा फुट फुट के सामने आउंदा वे। उन्हां दा एक शब्द आउंदा है कहन लगे झगड़ा एक नबेड़ो राम। कहंदे ने मेरे मन विच एक तोखड़ा पैदा हो गया जे तू कबीर नूं अपना सेवक बनाना ते एक झगड़ा खत्म कर। ते महाराज वो झगड़ा कहदा कहन लगे मैनूं एक गल समझ नहीं पैंदी भी इत्थे लोकी खिच्चे तुरे आउंदे ने इशनान करन वाले जे तू अपने सेवक नाल 4 दिन कढने ने कहो कबीर हों भया उदास। वो शब्द अखीर दे बचन ने कहंदे ने मेरे मन विच एक उदासी है तीर्थ बड़ा के हरका दास। ये मैनूं गल समझा दे भी तीर्थ वड्डा है कि तेरी बंदगी करने वाला वड्डा है। फिर वो कहंदे ने नहीं असल विच तेरी बंदगी करने वाला खुद तीर्थ है। ध्यान दिया जे उन्हां ने कुछ प्रमाण दिते ते सारी जिंदगी वो बनारस विच रहे ने ते लोग हर एक बंदे नाल उन्हां ने चर्चा कीती ते कबीर साहब की बाणी के गुरमुखो टीकाकारा अर्थ जरूर कीते जे पर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कहना उस आत्मक जीवन नूं छो नहीं कोई सकिया जिस अवस्था विच कबीर बोलदे पे। कबीर साहब दे बचन हुंदा है सारी जिंदगी वो रहे बनारस विच ते जदों अंतला समा आया ते वो बनारस नूं छड्ड के मगहर की धरती ते चले गए। ते एक मनौत है कि जेड़ा बंदा पापी भी बनारस विच तन छड्डे वो मुक्त हो जाता है ते मगहर के अंदर जाके भावें भगती करने वाला तन छड्डे वो शराबी धरती गोरखपुर के नेड़े धरती मगहर की कहंदे उत्थे कोई अपना तन छड्डे भगती बंदगी कीती होवे वो गधे की जून विच पैंदा। कबीर ने भी काम लोकां दे सामने कर दिता। सारी जिंदगी बनारस विच गए अखीर ते जदों शरीर छड्डना मगर तुर पे तो लोग कहन लगे भी सारी जिंदगी उल्टे काम कीते नो अंतले समय ता सीधा कर। पुछया जी क्यों? कहन लगे हुण मुक्ति मिलण दा वेला है ते तीरथ ते अपने प्राण त्यागेगा मुक्त हो जाएगा मगर दी धरती ते जाना वो शराबी धरती ते तेरा भला नहीं होना। कबीर साहब दा शब्द आउंदा है गौड़ी राग विच कदी पढ़ियो। कहन लगे कि लोग सारे गल्लां तय करन उन्होंने फिर अमृत बचन कहन लगे ज्यों जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म को तप का ही ना बहुत वर्ष तप किया काशी मरण भया मगर की बासी। सारी जिंदगी इत्थे तप करदा रहो मरदे समय मगर उत्थे फिर कबीर जी ने एक गल कही कहन लगे दुनिया के लोगों तुसी मथे ते टिक्के ला केवल हिंदू लिए नहीं अज मेरे वीर लिए भी लागू हुए जे बाना पाया ते अंदर गुरु का प्यार नहीं। कह लगे मथे ते टिक्का ला गले विच जनेऊ पा ठेकेदार बने धर्म दा पर एक गल चेते रखी कि जे तू गंगा के किनारे भी रहे ते सारी जिंदगी मथे ते तिलक ला के इशनान करदा रहे ते गंगा विच बैठे हो डड्डू तो
ਪੁੱਛ ਲਈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਆ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਲੋਕ ਪਤੀਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਹ ਆਨਾ। ਰੱਬ ਕਦੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੀਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ ਖਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਵਜ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਝੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੰਡੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਡੁੱਲਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਕਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਕਦੀ ਤਿਰੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਪਤੀਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਆਨਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗੱਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਅਗਲੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਕਹੀ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੂ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ। ਜੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੈ ਬਨਾਰਸ ਨਰਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੈ ਹੜੰਬ ਹੈ, ਸਗਲੀ ਸੈਣ ਤਰਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌੜਾ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌੜਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੇਵ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌੜਾ ਰੇ, ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀਸੇ। ਖੈਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਪੈ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ।
जुड़िया होया दी संगत कर, ओदे विच तेरा अंदर धुपेगा। धूड़ी कर इशनान, उन्हां दे चरनां दी धूड़ नूं मस्तक ते लाई, निमरता रखेगा ते अंदर अपने आप ही पवित्र हो जा। साहब कह लगे इशनान करने ते उन्हां दे चरनां दी धूड़ विच दो गुरु ग्रंथ साहिब विचों प्रमाणिक भाई गुरदास दा बचन, वो कहते ने जिन्हां नूं आपां कहने आ ना भी ये पवित्र कर दे। भाई गुरदास दी एक पौड़ी कहते ने गंगा नूं 3 नाम दिते गए, तर्क ना समझियो, सिर्फ केवल इस बचन लई भी गुरु ग्रंथ साहिब ने की सानू रहमत करके निवेकली विचारधारा दी। भाई गुरदास कहते ने कि गंगा 3 लोकां विच मन्निया वगदी। स्वर्ग विच इहनूं भोगा अमरावती कहंदे ने, पताल विच इहनूं भोगावती कहंदे ने, ते इस भू लोक दे अंदर गंगा कहा जाता है। ते 68 तीर्थ जिहड़े ने वो गंगा के किनारे से बने ने। उत्थे फिर साहब भाई गुरदास ने एक बचन किया, कह लगे चरण अद कोए सुरसरी तज बैकुंठ धरत विच आई, बावन दे चरना दा जल है गंगा। कह लगे स्वर्ग नूं छड्ड के जदों धरती ते आई ते शिव जी ने मां शिव जी ने अपनियां जटावां विच गंगा नूं थां दित्ती। चरण उद कोए सुरसरी तज बैकुंठ धरत विच आई, 900 नदी 99 800 तीर्थ अंग समाई। भाई जी की गिनती तको कह लगे 999 नदियां दा पानी गंगा दे विच पैंदा है। 900 नदी 99 800 तीर्थ अंग समाई, त्यों लोई परवान होई। महादेव ले सीस चढ़ाई, 3 लोकां विच परवान कीता। महादेव ने अपने सीस ते थां दित्ती। फिर कह लगे देवी देव सरेम दे जय जयकार वड्डी वडियाई, सारे गंगा की सिफत करते हैं। कह लगे सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई, पर गंगा की आवाज सुन के देखो वो कहती है दुनिया के लोगो तुसी मेरे विच आके स्नान करते हो, पर मेरे लिए बेनती करियो सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई की। कह लगे साधु धूड़ दुलभ है, माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। साधु धूड़ दुलभ है, साध संगत सतगुर शरनाई, दुनिया दे लोगों चरण कमल दल कीम ना पाई। जुड़े होए दे चरण कमलों में जिहड़ी गाठ मिट्टी पई है ओदी भी कीमत कोई नहीं पा सकदा। जदों ये बचन पढ़े ते गुरु रामदास जी का शब्द पढ़ो, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करा उदम धूड़ साधु की ताई, किलविख मैल भरे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। हजूर कह लगे माघ मजन संग साधुआं, गुरमुखां की संगत कर। फिर किवें कर? साहब कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बुकीता। माघ मजन संग साधुआं, देख उन्हां दी संगत कीतियां पिघले मनुख भी पहाड़ ते चढ़ सकते ने, मूर्ख जेड़े ने वखियान करता बन सकते ने। माघ मजन संग साधुआं कह लगे पिंगल पर्वत पार परे खल चक्र बुकीता, अंगले तर भवन सोजिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की माघ मजन संग साधुआं, महंगा महिमा साधु संग की। सुनो मेरे मीता मैल खोई कोट अघरे निर्मल पैचीता। साहब कह लगे मस्तन पगड़ंत सैलन करदमन तरंत पपील कै, साग रंग लगंत पिंगम तम प्रकाश अंध कै। ये साधु की महिमा ही मस्तन कहते ने मच्छर, कहते जे मच्छर वर्गा कमजोर बुझ दिल मनुख होवे किसे जुड़े होए की संगत करदा है तो पहाड़ वर्गे वकारां नाल टक्कर ले सकदा है। मस्तन पगड़ंत सैलन करदमन तरंत पपील कै, ते कीड़ी सुके मिट्टी तेरी चंगी तरह चल सकती, किसे जुड़े होए की संगत करे ते कीड़ी वर्गा चिक्कड़ दे समुंदर नूं पार कर सकदा है। साग रंग लगंत पिंगम पिंगले बंदे समुंदर तक तर सकते ने। तम प्रकाश अंध कै, जिन्हों कुछ नहीं दिसदा रब नूं अंदर दा चानण दे दिंदा, पर शर्त के माघ मजन संग साधुआं, जो गुरमुखां दी संगत जुड़िया होया दी संगत करे। कह लगे धूड़ी कर इशनान, उन्हां दे चरनां दी धूड़ विच इशनान दा भाव है अपने आप नूं निमरता विच लियाई। गुरु घर दे अंदर धूड़ी दी बड़ी वड्डी महानता दसी गई। आप सब नूं पता है जदों आपां शाम नूं सौंदे आ ना, अखीर ते जिहड़ी मंग असीं मंगदे सवेर दे नितनेम विच सब तो पहली मंग की है ते रात नूं सौण लग्गिआं साडी मंग की है, 2 गल्लां चेते रखिओ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं समझण लई जदों सवेरे उठ के असीं नितनेम करदे आ ते साडी पहली मंग जपजी साहिब विच आउंदी है।
वो 5वीं पौड़ी की अखीर दियां पंक्तियां पढ़े। कह लगे जे हों जाना आखा नाही, पहली मंग की सवेर दी, जे हों जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई। ते अगे मंगने आ गुरा हे सतगुरु एक दे बुझाई, मैनू एक गल चंगी तरह समझा दे। केड़ी? सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। सब तो पहली मंग है जेड़ा सब नू रिज़्क देने वाला है, मैनू कदी भुले ना। ते जदों अखीर ते सोने आ मैं सोचना ये ओही बचन ने जेड़ा बाबा जी सचखंड विचों लैके आए। ते भाई साहब कहंदे ने बाबा पहंदा सचखंड नौनिध नाम गरीबी पाई। पहला नाम फिर गरीबी, पहला नाम फिर गरीबी। सवेरे दात मंगी सिख ने सब तो पहला कि सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। अखीर ते सौन लग्या कहंदा अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे। मोको कर संतन की धूरे धूरे गरीबी है, धूरे निम्रता है। स्वयं धन गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने जे मेरे घर विच आउणे ते हंकार नाल नहीं, चरण धूड़ का भाव ही वे अपने आप को मिटा के आई। साहिब दे बचन असीं पढ़ने हाँ कि पहला मरण कबूल। साडे सज्जन इस पंक्ति का बड़ा प्रचार किया जाता है कि मरण की गल पहला कई गुरमुखो मरना भी वो सवकार है जिहड़ा गुरु नूं भा जाए। कभी पढ़ियो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, कला लड़ के मर जाना कह देना भी शहीद हो गया, गल बड़ी उच्ची है। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते ना भीजे भेड़ मरे भेड़ सूर, सूर में भेड़ के मर जान ते रब कुछ नहीं हुंदा। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब गुरु दे अमृत बचना के आधार से सवैये सी पढ़ने। एक बचन हुंदा शुद्ध सुपा दुरंत दुबा सो सास ना दुरजान दलेंगे, भारी गुमान भरै मन में कर पर्वत पंख हालै ना हलेंगे। ये सूरमे की परिभाषा है। शुद्ध सुपा दुरंत दुबा सो सास ना दुरजान दलेंगे, भारी गुमान भरै मन में कर पर्वत पंख हालै ना हलेंगे। तोड़ अरीर मरोड़ मवासन माते मतंगन मान मिलेंगे। पर प्यारिया श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निधान चलेंगे। जे हाथियां नूं डालिया तां कादी गल हुई, जे श्रीपत भगवान दी तेरे ते कृपा नहीं ना ते इस तरह दुनिया तो जाएगा जिवें कंगाल चला जाता है। साहब ने क्या मरना कबूल करी, पहला मरण कबूल। जीवन की छड़ आस पर एक शर्त हो रही, जो पालेगा ते मरण की जांच आ जाएगी कि खो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास धूड़ी कर स्नान। खो सबना की रेणुका, सब दे चरण जी धूड़ बनी ते सतगुरु दे घर अंदर धूड़ फिर उच्चे मरतबे दे किवें पहुंचदी है। निम्रता वाला सब तो उच्चा जे धन गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने जेड़ा बंदा अपने आप को शुभ कर्म करके कहंदा मेरे वर्गा कोई नहीं, महाराज कहंदे ने उहदे वर्गा मूर्ख बंदा ही कोई नहीं। आपस को जो भला कहावे तिसै भलाई निकट ना आवे। कहंदे सवाल ही नहीं पैदा होंदा जेड़ा कहे मैं चंगा वो चंगा हो ही नहीं सकदा। आपस को जो जाना नीचा सो गणिए सब तो उच्चा, सब तो उच्चा होई जेड़ा अपने आप को नीवा कहंदा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन साहिब कहंदे ने माघ दे महीने विच उन्हां दे चरनां दी धूड़ मस्तक ते लाई जेड़े जुड़े ते कदी तको दो प्रमाण अर्ज करने काबल तो संगत आई है। धन गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जिथे खालसा कॉलेज इत्थे संगत ने पड़ा किया भी शाम पै गई है ते सवेरे गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह के दर्शन करने। सिख इतिहास कहता है जुड़े हुए सन, उन्हां विच बजुर्ग सन, उन्हां दे गुरु घर आउण दा ते साडे आउण दा बड़ा फर्क जी। वो जदों तुरदे सन टोलियां विच आसा दीवार दा कीर्तन करदे तुरना, सब दे इन्ने प्यार नाल भेज के पढ़ना भी गुरु तक जांदिया जांदिया भांडा तैयार हो जाए ते गुरु नदर करके इस भांडे विच ऐसी बस टिका ही दे। उन्हां दी मंजिल सी साईं नूं कहना। शब्द पढ़दे बुजुर्ग बच्चे बीबियां सारे आए, उथे कीता विश्राम ते पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव सच सिरजणारा आप मेरे दादा जी गए ते रात नूं हनेरे विच बुजुर्ग हाय हाय पे करन। उन्हां कोल खलो गए ते पुछदे ने बाबा आए किथे हो, जाना किथे जे? एक बुजुर्ग बोल के कहंदा बेटा आए काबल तो वां, जाना धन गुरु अर्जन साहिब दे चरण स्पर्श करने। कहन लगे इन्नी दूर तो तुरते आए
तो बजुर्ग अखां भर के कहता अपने गुरु का शुक्र करना आया जिन्हें ले आंदा जे ओदे दर ते सिर परने भी होके आना पै तो असीं तां भी आउण नूं तैयार सा। कहन लगे ना प्यार कदी गुरु अर्जन साहब के बचन पढ़ो प्रेमी तो निक्की गल करते कोई नहीं। साहब तो कहते खंभ विकांदड़े जे लहां कि ना सावी तोड़ कहते अपने बराबर तोड़ के मैं खंभ खरीद लवा तन जड़ाई अपना लाह सो सज्जन तोड़। कह लगे ओदे दर ते आए सिर परने होके आना पै ते कह लगे हाय है क्यों। कह लगे शरीर जवाब दई जांदा है हड्डियां जेड़ियां ने चीसा मारदियां ने दर्द हुंदी पई। तन गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह चरना विच बह गया। कह लगा बापू जे कृपा करे मैं तेरे चरना नूं घुटन दी सेवा कर ला। तो बिरध ने देखिया फिर क्या कह लगे बजुर्गा मैनूं सेवा कर लैंदे आए तू गुरु साहब दे चरना विच। कहंदे ने उसे वेले साहब धन गुरु अर्जन साहब ने एक एक बजुर्ग दे चरण पकड़ के आप मुठा चापी कीती। सारी रात सेवा करते रहे। सवेरे शब्द पढ़ती जो संगत कही तो हजूर नाल गए। गुरमुख प्यारे एक लिखते ने प्रिंसीपल नरेंद्र सिंह सोच तो कहते ने बाबा बुढ़ा साहब अगे खलोते सन। गुरु अर्जन देव संगत दे बुझ के उन्हां दे कपड़े बिस्तरे चौके नाल तुरे आउण ते जोड़े ला के काली काली हो गई कि पहला दर्शन मैं करा। ते तन गुरु अर्जन साहब कोल खलोते कह लगे जोड़िया विच कौन खलोएगा। संगत कह लगी हजूर कह लगे बजुर्गो जे सेवा मैनू दे देवो ते मेरे बड़े भाग होणगे तुसी दर्शन करो मैं सेवा करना हूं। जदों संगत अंदर गई बाबा बुढ़ा साहब तकदे पए सन आके पूछया क्योंकि बुढ़ा आप सिख सी ना। सिख संगत जदों भी आउंदी सी जिस घर विच बाबा बुढ़ा बैठा हुंदा सी समझिया जांदा सी ये गुरु नानक दा सच्चा घर है। गुरु अमरदास जी ने तो गल ही मुका दी। कह लगे बाकी गल्लां छड्डो जिदन सन ला के प्रगट किया गुरु ते धन गुरु अमरदास जी ने साथी ने ला के क्या गुरु प्रगट करने की जाच सीखनी है तो गुरु तो सीखियो। असीं तो सिर्फ साथी सुना देंगे सन लाई पिछों। बाबा बुढ़ा कह रहा सी लोगों जे गुप्त नूं प्रगट करना है बाहर दे दरवाजियां ते ताला लाओ अंदर का दरवाजा खोलो। जदों 10वें द्वार खोलोगे तो गुरु जरूर प्रगट होगा। बाहर के दरवाजे ते बिल्कुल ताले लगे पए सन। किते सन साहब जाओ बाहर का दरवाजा किते खुला मिलिया सी। साहब धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने जदों सीने न लाया उत्थे फिर कोई शब्द कहे कवि संतोख सिंह ने श्री गुरप्रताप सूरज विच अंकित किया। कह लगे कि सिक्खी अवध न इस्तै परै नाम लैत गन विघन सो हरै। तू सिक्खी दी हाथे तेरा नाम लिया पाप खंडन हो जाएंगे। कह लगे ये भवजल को बोझ पारा ये संगत को बोझ पारा भवजल से करा निस्तारा। बाबे बुढ़े ने जदों तकिया संगत ने पूछया धन गुरु अर्जन साहब किथे ने दर्शन करना आया ते बाबा जी दे नेत्रां विचों नीर दी झड़ी लगी बोले कुछ नहीं। हुण तको पिरथिया अपने दावे करदा सी। धन गुरु अर्जन साहब केवल कह रही नहीं रह के धूड़ी कर इशनान। बाबा बुढ़ा साहब अखां भर के कहंदे ने जिस दे चरण तुसी पकड़न आए हो वो तुहाडी रात दी चरनां नूं घुटदा पिया। आओ तको जिहड़ा तुहाडे जोड़े कपड़े नाल पल्ले नाल साफ पिया करदा ओही धन गुरु अर्जन साहब। संगत आई चरनां ते डिग्गी देखो सेवा किवें करनी। साहब गुरु अर्जन देव जी नूं बाबा बुढ़ा साहब कहंदे ने दातार तू दीन दुनी दा मालिक है। संगत कह लगी सतगुरु साडे जोड़े। हजूर ने क्या तुहाडे नहीं। कह लगे बुढ़िया तू गुरु नानक दे दर्शन कीते ने नीज ला के तकी गुरु दर ते आउण वालियां दे जोड़ियां विच गुरु नानक दा जोड़ा पिया। मैं गुरु नानक दी सेवा करना किसी मनुख दी नहीं। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच जदों क्या महाराज एक उस सिख ते मेरे गुरु अर्जन साहब ने उत्ते बचन क्या कह लगे गुरसिੱਖੀ पहाड़ा मन्निया गुर पूरा पार लंघाए गुरसिੱਖਾਂ की हर धूड़ दे खम पाती थी गत पाह। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कह लगे माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। उन्हां दे चरण धूड़ विच इशनान करी ते भाई गुरदास जी नूं कदी पुछो उन्हां दा कबित हुंदा ओ तां इत्थों तक कहंदे ने कि सारी जिंदगी मैं कोई सेवा नहीं कीती। कहंदे ने मेरे मरण तो बाद जिहड़ी मेरी मड़ी दी सवाह है ना
ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਬਿਖੇਰ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। हे ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਲਓ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਨ ਜਲਾਏ ਪੁਨ ਪੀਸਨ ਪਸਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਕੋਈ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਤ ਕੋ ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਉ ਤਾਉ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈ ਪਦ ਪਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈ ਪਦ ਪਾਦਕ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਿ ਦਇਆ ਕੈ ਦਇਆਲ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਪਦਤ ਉਧਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੈ ਜਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹਰੈ। ਜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਬਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਨਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਨਵਨੀ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਕ ਤੋਵੈ। ਫਿਰ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਪੜਾ ਪਿਆ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨੌਲੇਜ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਗਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਮੈਕੇ ਗਈ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਸਮਝ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰਤਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਫਸੋਸ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੜਪ ਰੱਖ ਲੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨੀ ਰਾਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਾ ਪਰਤਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹੀਮ ਜੀ ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਰਹੀਮ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਰ ਚੜਾਵਤ ਸੀਸ ਪਰ ਕਉ ਰੀਮ ਕਿਆ ਕਾਜ ਤੇ ਰੀਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਰਿਸ਼ ਪਤਨੀ ਤਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ ਤੁਲਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹੀਮ ਅੱਗੋਂ ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਰ ਗਈ ਸੀ ਹਾਥੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਲਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਦੂਰ ਜਰਾਵਰ ਸੀਸ ਪਰ ਕਉ ਰਹੀਮ ਕਿਆ ਕਾਜ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ ਪਤਨੀ ਤਰੀ ਸੋ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਗਜਰਾਜ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਓ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆ ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਤੇ ਭਰਨਾ ਭਾਂਡਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੜੋਪੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਪੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਦਈ ਨਿਤ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਧਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣ
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੇ ਖੇਡ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਇਸ ਤਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੱਖ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਭਿਆਸ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਜਪਣਾ ਪੈਣ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਏ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ 20 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇਗੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਪੇਗਾ ਤੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਸਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੀਵੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਣਾਤ, ਸੁਣਿਆ ਧਰ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੱਕਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਜਨਮ ਕਰਮ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੌਂ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਾਹ ਕਰ ਤੇ ਮੈਲ ਲਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੈ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਦਿਨ ਸਹਿ ਲੋਭ ਸੁਹਾਨ। ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁੱਸ ਗਏ 5 ਆ ਗਏ।
काम की थां संयम ने ले ली, ध्यान देना जत ने ले ली, जिहड़ा हंकार सी ओदी थां स्वैमान ने अणख ने ले ली, कुछ कर ली तुर पिया, मोह की थां प्यार ने ले ली, लोभ की थां सबर ते संतोख ने ले ली। वो जेड़े खिंच सी जां वो जेड़े विषय सन वो गुरु कृपा नाल तब्दील हो गए। किवें? साधना एक ऐसी है, जेड़े असीं कीमती हीरे देखने आ ना, जमीन की तह विचों निकलते हैं। सियाणे कहंदे ने मुद्दतां तक कोला जमीन के थले पिया है, मुद्दा तक पिया है। ते कहंदे ने वो तपस्या नाल, उस तपश दे नाल कुछ समय तो बाद वो कोला ही कीमती हीरे बन जाता हुंदा है। वो कालख साहब कहंदे ने कि जदों किसी ने कमाई की फिर होया कि जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना होइए। हुण काम नेड़े नहीं आउंदा, गुरु ने कृपा कर दी, समझा दिता। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच एक भगत नामदेव जी का बचन हुंदा है, एक दिन समाज नूं चलना पएगा गुरु के बचनां ते। ਅਸੀਂ जिस चीज़ ਨੂੰ कह रहे हैं मनुखी अधिकारां विच कि बंदे ਨੂੰ स्वतंत्रता चाहिए, ये स्वतंत्रता बंदे ਨੂੰ गाल रहेगी पर अंदर टिका नहीं आएगा। कि काम हो के कभी कुछ संतुष्ट हो जाएगा, कि वकार हो के कभी किसी की तृप्ति होगी? बंदा तो समझदी कुछ नहीं। 25,000 मील का सारा एरिया असीं मानने धरती का, ते 13 लाख इहो जिहियां धरती होण ते तां सूरज बनदा है, ते बंदे दी हस्ती किन्नी कोई दे विच। साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, कह लगे दो गल्लां जिहड़ा जिंदगी विच कमा लेना रब उहदे नेड़े आउणा शुरू आ जांदा है। नामदेव जी ने पुछया किहड़ियां? कह लगे पर धन, पर दारा, पर हरी। एक पराया धन, पर दारा पराई इस्तरी, तां निकट बसा नर हरी। कहंदे रब उहदी बुकल विच रहिंदा जिहड़ा दो गल्लां कमा लगे, काम क्रोध ना बोईए। ते अगली कृपा की बिन सै लोभ सुवान, सुवान दर थे कुत्ता। कहने लगे जिहड़ा लालच कुत्ता भौंकदा सी ना, बिन सै मेरे मालक ने वो भी कृपा करके टिका दिता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब एक बार ये अर्ज की सी, लालच नूं कुत्ते नाल तुलना दिती ते वफादारी नूं भी कुत्ते नाल तुलना दिती। गुरु तेग बहादुर जी ने कभी दो शब्द पढ़े, स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नित, नानक ए विधार भजो एक मन होए एक चित। कहंदे इस तरह जपी जिवें दर ते बैठा कुत्ता है, ते दूजे पासे कहंदे तमा तो बची सुख है हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान जो दौलत, मैं सुध राम भजन की। क्योंकि लालच नूं खड़किया कुत्ता किया, वफादार कुत्ता आप खत्म हो जाता है, मालक का घर विच आंदा है, ते हल्के कुत्ते नूं मालक दुध पाए ते मालक नूं भी कट्टण तो गुरेज नहीं करता। साहब कहंदे कृपा की, काम क्रोध ना मोहिए, बिन सै लोभ सुआन। धन गुरु अर्जन साहब कहंदे दृढ़ता नाल तुर पई। ये ठीक है जदों तू कहना भी मैं संगत विच इशनान करना, ते जिहड़े तीर्थ इशनानी ने उन्होंने तेरे ते दोष लाने ने, जदों तू सेवा करनी है ते लोकां ने तेरे ते ਉਂਝਾਂ लाणियां ने। साहब कह लगे फिर सच्चा मार्ग चल गया, जेड़े कल तक निंदिया करते सन, सच का पल्ला न छड्डी उस्तत करे जहान। वही लोग कहणगे वाकई इहदे वर्गा जीवन किसे दा नहीं। साहब धन गुरु नानक देव जी ने जन्म साखी विच एक बचन आउंदा है, इन्हें मरदाना जी एक दिन उदास होके आए ते सतगुरु दे कोल बैठे रहे, चेहरा थोड़ा जिहा ढलिया ते साहब पुछदे ने मरदानिया की गल अज चेहरे ते खेड़ा नहीं, बोलिया नहीं। सतगुरु ने फिर पूछया, फिर नहीं बोलिया। तीजी बारी आप झंझोड़ के कह लगे की गल रुस गया, बोलना नहीं, अखां भारियां। कहंदा दाता जी पिंड विच गया सा ना, ते लोकां ने कहा ये ओ डूम जे जिहड़ा नानक कुराइया हो गया, कुराइये दा डूम। साहब कह लगे फिर तेरियां अखां क्यों भर रहीआं? देखो दे अंदर दा प्यार। कहंदा दाता मेरे बाप नूं ही लोग डूम कहंदे ने, साडे खानदान नूं लोग डूम कहंदे ने, जदों तैनूं कोई कुराइया कहंदा मेरे अंदर नूं चीर के लै जांदा है। इन्हां नूं पता ही नहीं कि गुरु नानक दे चरनां विच किन्नियां को रहमतां। लोग कहंदे ने कुराइये दा डूम, मैनूं डूम कहण पर तैनूं कुराइया क्यों? अखां भर के जदों रोबिया साहब ने सीने नाल ला के क्या मरदानिया भस पए इन्हां दे सिर ते, जेड़े अज तेनू कुराइये दा डूम कहंदे ने, कल तेरे दर्शनां दी सैकण करनगे,
कभी तकियो दृढ़ता नाल तुरिया जाई ते चेते रखी निंदक लोग भी एक दिन मनणगे तेरी कमाई नूं। नमस्कार साहब कह लगे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान अठ सठ तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। प्यारिया 60 तीर्थां दा इशनान पुन दान तू करना किसी जीव ते दया कर दी 68 तीर्थ दे विच ही। हुण प्यारियो अज जदों मैं पेपर कई बार तकना ना गुजरात विच की हो रहा है हकीकत तो असीं पर्दा अखां ते अगे पा नहीं सकदे। साडे नाल की होया ते उन्हां लोकां कीता जेड़े कह रहे ने हिंसा परमो धर्मा सब तो पवित्र धर्म जेड़ा ओह हिंसा है। ते गांधी जी सारी जिंदगी नारा मारिया ते की अज उत्थे जे कोई बाहर दा तीर्थ इशनान करदा ते जिउंदे बच्चियां नूं चीरदा बीबियां नूं चीरदा बजुर्गां नूं चीरदा पिया कि ओह हिंसा परमो धर्म है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते ने गल सुनो मेरी केवल तू कीड़ी नूं तां बचाई जाना ते चेते रखी हिंसा एक तरह की नहीं जदों तू किसी दे हिरदे नूं चीरना बोल के वो भी हिंसा है। बाबे फरीद ने एक बचन किया सी कह लगे सबना मन मालिक ठाहन मूल बचा लवा। वो सारिया हिरदियां विच रब वसदा वैगुरु वसदा हरी वसदा है। जे तो तरिया दी सिख जे रब नूं मिलना चाहना तां हयाओ ना खाए कहीं किसी दे हिरदे नूं ढाई ना। भाई साहब भाई वीर सिंह ने श्रीनगर ਉਹਦੇ नेड़े एक मंदिर है मारकंड बड़ा पुराना मंदिर खंडरात हो गया सी जालिम ने ढाया। भाई साहब ने उस खंडर दे उस मंदिर के टुकड़ियां नूं दे के कविता लिखी कहंदा मार पई जद मारकंड नूं पत्थर रो फुरलाने टुटियां मूर्तियां ने कह लगे मार पई जब मारकंड नूं पत्थर रो फुरलाने पत्थर तोड़े दिल पिया टुटदा दिल काबा रब आने। पत्थर नहीं तोड़दा लोकां दे दिल पिया तोड़ना ओनू तोड़ना जिथे रब रहिंदा पिया। साहब सच्चे पातशाह कहते ने तू दया मन में धारण कर ली समझी मैं 68 तीर्थां दा इशनान कीता ते तुलसी ने तां शब्द ही वरतिया सी कह लगे दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब ल घट में प्राण। बाबा जी ने पूछा धर्म की है कह लगे धर्म होवे जिहदे सज्जे हथ दया खलोती है ते खब्बे हथ संतोख खलोता है। ताई क्या सी धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। कभी देखो मेरे बाबे दे घर दी दया अकबर वर्गा हुंदा है आके प्रसाद छकदा है कहना मैं लंगर ना जगीर गुरु अमरदास कहंदे नहीं कहंदा फिर सेवा तन गुरु अमरदास कहंदे ने जेड़ियां बच्चियां दा साईं चला जाए जबरदस्त उन्हां नूं चुक के चिखा विच जिउंदियां नूं साड़ के सती करदे ने। जे तेरे कोल हकीम हुकूमत है उन्हां बच्चियां दियां चीखां नहीं सुनिया जांदियां सती प्रथा ते रोक ला दे है अंदर दया। ते साहब ने फिर उत्ते शब्द वरते केड़ा कहंदा सी कि जगत जलंदा रख लै जी दया प्रवान जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार जित द्वारा उभरै तितै लिहो उभार। की जी दया नहीं सिख भावें अरदास करे पुत्र दे जन्म दी सिख अरदास करे भावें पुत्र दे मौत दी सिख अरदास करे खुशी दी गमी दी घंटे दी 2 घंटे दी अरदास कर ले। पर बाबा जी कहंदे ने अरदास च मत्था टेकण तो पहला शब्द तेरे मुंह विचों निकल केड़े कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भावें सरबत दा भला जी दया प्रवान। असर तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। सतगुरु फिर संगत चरना दी धूड़ अपने उद्यम नाल नहीं कह लगे जिस नूं देवै दया कर सोई पुरख सुझान। जिदे ते तू त्रुठे ओनू कृपा करके तू दात देना दया दी सिमरन दी ध्यान दी जपण दी। साहब कह लगे जिन्ना मिलिया प्रभ अपना जिन्ना नूं मेरा साईं मिल गया नानक 3 कुर्बान। धन गुरु अर्जन साहब कहंदे ने मैं उन्हां तो कुर्बान जे जिन्ना नूं साईं मिले हाँ कुर्बान है जाऊं तिना कह लैण जो तेरा नाम जेड़े तेनू जपदे ने मेरे मालक कबीर सुपना हूं बरड़ाए कह जे मुख निकटै राम
ताकि पग की बन ही मेरे तन को चांद। साहब गुरु ग्रंथ साहब कहते जो साथ गिरात ध्यावै मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवर नाम जपावै। जिन मिलया प्रभ अपना जन के चरण वसै मेरा हियर है। संग पुनीता देही जन की धूड़ देओ कृपा निध नानक कै सुख सुख कह लगे जिन्ना मिलया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान ते खीर ते कह लगे तीर्थ न सुचमता नहीं। माघ सुचे से काढ़िए माघ दे महीने विच सुचे वो बने ने जिन पूरा गुर विगमा जिन्ना ते पूरा सतगुरु मेहरबान हो जाए दयालु हो जाए फिर वो सुचे ने ते वो सुचे किवें होए। साहब कह लगे सुचे ये ना आखिए बहन जे पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। जिन्ना अंदर साईं बस गया वो अंदरों सुचे ने ओही सचियार ने। धन गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करे असी गुरमत दा मार्ग जे सिमरन करना आप संगत करनी जपन वालियां दे चरनां दी धूड़ मस्तक ते लाई। बाकी फिर गुरु दा काम है वो आप ही कृपा करके मंजिल बख्शदा है। कोइयां बेअंत भुल्ला साहब संगत बख्श दिया जी। कल अखीर दा दीवान है इस फेरी का एक बेनती आप दे चरनां विच हुण भी करनी है ते कल जिवें आप जी नूं पता है कि इस गुरु घर विखे लंगर दी इमारत दी उसारी हो गई है। देखो आउणा आप ही इस गुरु घर विच अपने वेत मुताबक जिथे आप किरत करदे हो दसवंध दी माया विचों सतगुरु दे घर दी सेवा लई प्रबंधक वीरां दा सहयोग दिया जे तां जो सतगुरु दे घर दी सेवा हुंदी रहे। आप नेम नाल देखो आप दसवंध कढ़दे ने विचों गुरमुख प्यारे आप विचों फिर भी इनू अपना गुरु का घर अपना घर है। तो मैं तो कई बार हस के कहना हुंदा कि अखीर ते जिस घर दे लोकां नूं नहीं रखना सुपना विच भी किते घरदियां नूं दिस गया उन्हां अरदास ही करानी है भाई साहब जी पता नहीं मरन तो बाद सुपने विच की आउंदा अरदास करो सुपने विच ना दिसे करो। सुपने विच भी देखना पसंद नहीं करते फिर गुरु घर ही अरदास होनी है उस गुरु की सेवा करिए। दूसरी बेनती गुरमुखां ने हुक्म कीता सी जे मालिक नूं अगले साल पाया उस दी रहमत है सिद्ध गोष्ठ दी विचार ले वो विचार आप दे इस स्थान ते यतन करांगे अगले साल कल खीरला दीवान है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।